Good morning, students. As we have discussed the application of derivatives, this is the second video, and in which I will discuss the important questions related to CBSE 2020. These are the 4 marks questions. So let's have a look. First question: if x and y are the sides of two squares, x और y अगर दो स्क्वेयर्स की साइड्स हैं, लेट अस से एक स्क्वेयर ये है, इसकी साइड्स x हैं, और एक स्क्वेयर ये है, ठीक है, उसकी साइड्स y है, ठीक है, टू डिफरेंट स्क्वेयर्स, सच दैट आपको कंडीशन गिवन है दोनों स्क्वेयर की साइड्स में y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्क्वेयर. इट मीन्स यू नीड टू फाइंड dA2 over dA1, where A1 and A2 are the areas of first and second square respectively. So let's start with the solution. That is, in these kind of problems the notation is very important. First of all, since x and y are the sides of two squares, I have represented A1 as area of the first square and A2 as the area of the second square. Since the side of first square is x, the area of first square is equal to x square, and side of second square is y, the area of second square is equal to y square. Since they are related in this way, y is equal to x minus x square. So since y is equal to this and y square is equal to squaring both side, y square is equal to x minus x square का whole square. Then हम क्या करेंगे, हम सेपरेटली इसको विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज निकालना है, इट डजेंट गिव एनी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, इट डजेंट गिव इट, क्लियर. सो वी नीड टू फाइंड रेट ऑफ चेंज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम, ठीक है. जब भी आपको रेट ऑफ चेंज पूछा जाएगा, यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो वी नीड टू फाइंड डी ओवर D2 over A1. So dA1 is equal dA2 is equal to dA d by dt of A2 and d by dt of A1. So separately we have to find these two. A2 is equal to A2 y square, differentiate करोगे you will get this x minus x square की differentiation, x की differentiation 1 and x square differentiation is equal to 2x. Since we are differentiating with respect to dt, so we have to multiply by dx by dt, and for dA1 over dt we will get this x square which is equal to 2x, साथ में dx by dt. Then put this value in this equation, dA2 over dA1, separately dx by dt is cancel with each other, 2 is cancelled with 2, and let us take common x from this. We will get 1 minus x and 1 minus 2x, x is cancelled with the x, so multiply this, you will get the required answer, dA2 by dA1. So this is the first question. Second question is very important for your CBSE point of view and PSEB also. Very very important question. See, this is the question related to the cone, clear, and the water level. Water level is leaking from the conical funnel. Conical funnel is like a funnel which you are using in your chemistry labs. Leaking from a conical funnel at a rate of 5 centimeter cube per second. Since it is a water, so volume is given, that's why centimeter cube per second. If the radius of the base of the funnel is 5 centimeter and height of the funnel, complete height is 10 centimeter, radius is 5 centimeter, find the rate at which the water level is dropping when it is 2.5 centimeter from the top. Since, look at here, which is very important, what we need to find, we need to find the rate, पहली बात rate है with respect to time, at which the water level dropping down. It means water level drop down कर रहा है. अगर water level पहले यहाँ पर था कौन के, फिर यहाँ पर आ गया, इट मीन्स मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, हाइट. वाटर लेवल की क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग, हाइट, क्लियर. सो वी नीड टू फाइंड दैट हाइट विच इज़ चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, and that change is
negative in nature because it is dropping down. The water levels dropping when its height is 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप. अगर उसकी हाइट, पानी के लेवल की हाइट जो है वो टॉप से 2.5 सेंटीमीटर हो. ठीक है, तो इसके बाद ये कितने रेट से चेंज हो रही है, इसकी ड्रॉप कितने देर से, मतलब कि वी नीड टू फाइंड डी एच बाय डी टी. दिस इज़ वाट वी नीड टू फाइंड. क्लियर? इस क्वेश्चन में दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन यू मस्ट बी क्लियर अबाउट व्हाट वी नीड टू फाइंड एंड व्हाट इज गिवन टू यू. क्लियर? सो let's start with the solution. I have marked this radius as a small r, which is, this radius is given to you, that is 5, and total height is 10, which upper height drop down कितना हुआ है 2.5, and कितनी height बच गई है अभी, that is we are letted h. clear? ये मैंने इसमें r और h लेट किया है, that's it. नीचे वाला जितना वाटर लेवल बच गया है. अब बाकी ऊपर वाला स्पेस जो है वो खाली है, पानी सिर्फ इतने एरिया, इतने वॉल्यूम में ही सीमित है. ठीक है, इतनी हाइट तक की पानी है, ऊपर वाली खाली है. क्लियर? क्योंकि लीकेज है तो वो खाली होते होते यहाँ तक पहुँच गया है. अब उसने पूछना है कि कितना रेट ऑफ चेंज वो ड्रॉप कर रहा है, उसको ड्रॉपिंग होने का, पानी के लीक होने का रेट ऑफ चेंज क्या है, पानी की वाटर लेवल के ड्रॉप होने का, नीचे गिरने का स्टेट का रेट ऑफ चेंज, टाइम कितना है, क्या इसका चेंजेस आ रहे हैं नीचे गिरने के. सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर ऑफ द फनल. ठीक है, वी हमने लेट कर लिया वॉल्यूम, जो ये वाला वॉल्यूम है, नॉट दिस कंप्लीट वॉल्यूम. वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द फनल. ठीक है, सो व्हेन वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम वी यूज दिस आर एंड दिस एच. क्लियर? बिकॉज वी हैव टू फाइंड डी एच बाई डी टी. वी हैव मस्ट बी क्लियर अबाउट दिस एरिया. वी मस्ट बी डीलिंग विद दिस एरिया ओनली बिकॉज वी नीड टू फाइंड डी एच बाई डी टी. सो डी वी बाई डी टी इट इज़ गिवन टू यू in the statement. Look at here, the water is leaking from the conical tap at a rate of 5 centimeter cube per second. तो वाटर ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो इट मीन्स वॉल्यूम इतने वो रेट ऑफ चेंज से डिक्रीज़ हो रहा है. सो दिस इज डिक्रीजिंग, ड्रॉपिंग, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपिंग डाउन, देयर फॉर इट विल बी नेगेटिव साइन. तो ये नेगेटिव साइन इसके ड्रॉप डाउन से आया है, उन्होंने और स्टेटमेंट में नहीं गिवन था. सो हाइट कितनी आएगी, हाइट आ जाएगी दैट इज़ टोटल 10 थी, ऊपर वाली हाइट 2.5 है, दिस एच इज़ 7.5. क्लियर? नाउ वी हैव टू डील विद द वॉल्यूम. वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ द कौन फार्मूला लग जाएगा. एंड आर, हमें इस क्वेश्चन में हम आर के साथ कुछ भी डील नहीं कर रहे. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू अप्लाई द सिमिलर क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स. लाइक एक हम ट्राइंगल ले लेंगे ए बी सी. लुक इन द फिगर. एक ट्राइंगल लेंगे ए बी सी और एक ट्राइंगल लेंगे ए डी ई. ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बिकॉज ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन. तो यहाँ से मेरे को ए बी ओवर ए डी, क्योंकि ए बी भी मुझे गिवन है दैट इज़ 10 और ए डी कितना है एच, और रेडियस ले लेंगे दोनों दैट इज़ बी सी ओवर डी ई. ठीक है, क्योंकि पहले मैंने बड़े ए बी लिया साइड, तो उसका रेडियस भी बड़े वाला ही लेंगे ऊपर. ठीक है, सो ये मैंने यहाँ पे नेक्स्ट आपके स्टेप में यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल क्राइटेरिया से ले लिया है, यहाँ पे लिख भी दिया है प्रॉपर क्यों लिया है. वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेवल चेंजिंग पर यूनिट टाइम. वी नीड टू फाइंड दिस का मीनिंग क्या है, डी एच ओवर डी टी. There, since water is dropping down at rate of change of water level dH by dt, we must be नेगेटिव. तो dH by dt क्योंकि ये भी ड्रॉप डाउन हो रहा है तो इसका आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा. ठीक है, सो आगे हमने सिमिलर ट्रायंगल का क्राइटेरिया लगा लिया, जो मैंने अभी आपको बोला था, ए बी ओवर ए डी इज इक्वल टू बी सी ओवर डी ई. ठीक है, इनकी वैल्यूज़ फिल की. यहाँ से आपने आर का रिलेशन निकाल लेना इन टर्म्स ऑफ एच. वेरी इंपॉर्टेंट सम, सेम एज इट इज़ ही आपको कॉपी में पेपर में आया होता है, बिल्कुल सेम. सो आर इज इक्वल टू एच बाई 2, ये आपको बहुत बार मिल जाएगा पेपर में. लास्ट पे प्रीवियस पेपर चेक करोगे तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत बार आया हुआ. ठीक है, 2019 में आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है, 2017 में आया हुआ है. तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है,
नाउ यू नीड टू फाइंड द वॉल्यूम. वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस, इसकी वैल्यू फिल करेंगे आर की h/2 का स्क्वायर. सो यू विल गेट पाई बाई 12 h3. दिस इज़ योर वॉल्यूम. अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड यू विल गेट दिस dv/dt. एंड विद रिस्पेक्ट टू टी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन वैसे ही होगी h की, और साथ में क्या लगेगा dh/dt. एंड दिस इज़ व्हाट वी नीड टू फाइंड. अब इस पूरे सम में हम इसको फाइंड करेंगे बिकॉज इसकी वैल्यू हमें ऊपर सम में गिवन है, दैट इज़ -5. क्लियर. dh/dt यू विल गेट दिस, dh/dt इतना आ जाएगा, और h की वैल्यू आपने पहले फाइंड कर रखी है, दैट इज़ 7.5. तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे फिल करके यू विल गेट एट द लास्ट 16 -16/45 पाई सेंटीमीटर सेकेंड पर सेकेंड. सिंस इट इज़ हाइट, तो जो ड्रॉपिंग लेवल ऑफ वाटर है तो वो सिर्फ हाइट का ही आएगा, रेट ऑफ चेंज. तो दैट इज़ वाई वी यूज़ सेंटीमीटर ओनली. क्लियर एवरीवन. क्योंकि वाटर जितना मर्जी ड्रॉप करे, उसका ड्रॉपिंग लेवल तो उसकी हाइट ही होगी ना. पहले इतनी हाइट थी, अब वो पानी कम हो गया तो इतनी हो गई, फिर पानी कम हो गया तो इतनी हो गई. तो एक्चुअली क्या हो रहा है, हाइट ही चीज़ की चेंज हो रही है. तो दैट्स वाई वी नीड टू फाइंड dh/dt. सो वेरी इंपॉर्टेंट सम. Tomorrow we will start the next type, that is increasing and decreasing. Till then, have a nice day. Take care everyone.